ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਜ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਰਿਟਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਵਿਆਹਤਾ ਅਪਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਦਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਏਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਬਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਨਪਰਸਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਡਰੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। Can I request the admin, Masira, to please mute other people? Thank you. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ, ਇਹ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ I think Mr. Indrajit's voice is muted. We can't hear him. Okay, I think when you muted everyone, you muted me. मैं माफी चाहांगा कित्थों मैं गल I'll start again. मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ SP ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ, ਤੱਥ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਸਿੱਧੂ to come and discuss and talk about ਕਿ ਮੈਰਿਟਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਲਾਹ, ਕੁਝ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਅਵਨੀਤ ਜੀ, ਦ ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਆਲ yours, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਕॉर्ड ਦੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ and I'll be sharing my suggestions, my views from a police perspective. So अगर आप गल करिए मैरिटल dispute दी, सानू भी बहुत सारियां complaints daily basis से we receive many complaints related to marital dispute. Even कि मैं खुद हर रोज 5-6 complaints इस तरह दियां deal कर दियां in my office. So on average it's like 5 to 6 complaints which are related to marital dispute मैं हर रोज अपने office which deal कर रही है। So जिस तरह ਦੀਆਂ complaints ਸਾਨੂੰ receive ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, अगर आप गल करिए कि analyze the kind of complaints we are receiving, ਤਾਂ I'll share a few points, 5-6 points जो उभर के सामने आउंदे if we analyze it, जो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ कि ਇਸ ਦਾ reason ਕੀ ਹੈਗਾ, what is the reason behind this disputes। so जो what from a police perspective what we judge when a complainant comes to us is, first of all it's the lack of understanding and communication। जो ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि why this lack of understanding comes out, it's because of many reasons। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ education difference ਹੈ, there is a difference of social background, social status, या ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि too much influence of one person over the other, lack of acceptance for your partner's choices, some of very basic issues ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ social structure ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, which will be discussed later on from our counselors। ਇੱਕ ਹੋਰ reason ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ which is abuse, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ drug abuse ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, alcoholic abuse ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, when most of the times it's the male partner ਜੋ ਕਿ alcoholic abuse ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ marital conflicts ਹੈਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, drug addicts ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ marital conflicts ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। Another reason is ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ prevalent ਹੈਗਾ NRI marriages, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ trend ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ most of the youth they are going out, so ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ they get married, parents ਵੀ decide ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ and we'll send them off। ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਟੱਚਿੰਗ ਦੈਟ ਐਸਪੈਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਊਰੀ ਵਿੱਚ it's a very different aspect, it's not related to two people, it's related, it's family which involve ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ further break down ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ reasons ਦਾ, it becomes very challenging for a police officer to deal with such complaints, because ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ complainant ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ my husband is beating me ਜਾਂ my husband doesn't understand me, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, complaint ਵਿੱਚ generally ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and when we talk to the person many other factors come up, many other issues come up, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ clarity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ it's not some domestic violence or just domestic abuse, it's basically a lack of understanding, a lack of empathy towards each other। so ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ challenge ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ we can't point out fingers ਕਿ one person is correct, the other is wrong, there is something just lack of communication ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ acceptance ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, everyone wants respect ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ choices ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ preferences ਲਈ, some of the very basic reasons। so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
we try first of all तो साडी कोशिश यही हुंदी है कि सी दोनों parties ਨੂੰ सुन के बुला के उन्होंने पूछिए what's the problem with them and we try to talk out ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ we have to play the part of counselors also sometimes and it takes really long ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ convince ਕਰਨ ਲਈ to find out the real issue you know because core issues ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ the reason for conflict it's very difficult to decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ how will you solve it so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ all these reasons which I have discussed they come up ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then slowly and slowly we take many sittings from those people and then sometimes we are able to decide कि okay this is the reason and this is the basic solution which we can find out also मैं ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि NRI marriages ਦੀ so recently I had a case related to NRI marriages ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ and then they thought ki both of us can go abroad and settle down ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ settle down ਕਰ ਲਾਂਗੇ and their families also agreed ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ that's a good decision and later on we'll see ਕਿ ਆਪਸੀ understanding ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ so they got married ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ the boy was less educated the girl was definitely more educated so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ and जो girl ਦੀ family ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ dowry ਦਾ case ਕਰਤਾ which was totally ਮਤਲਬ dowry ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ just because they couldn't understand each other ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ compatibility issues ਹੋ ਗਏ so the case was registered and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ counseling ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ family ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ I have been talking to both the boy and the girl personally so ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ compatibility issues ਦੇ understanding ਦੇ issues ਆ ਰਹੇ ਹੈ so at these situations also police officer has to deal you know very sensitively ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ issues ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ handle out ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ so these were the reasons which we were talking ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ disputes ਹੋ ਰਹੇ ਆ but ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ counseling angle ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ how we are dealing with them ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ channels ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ complaints receive ਕਰਦੇ ਹਾਂ one is the women helpline ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ complaints ਆਉਂਦੀ even during the pandemic we received a lot of complaints ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ this issue ਅਸੀਂ ਅਵਨੀਤ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ हैं if she is going to take time to come back बहुत से इश्यूज जो अवनीत जी ने एड्रेस किए हैं उनमें से कुछ बातें बड़ा क्लियरली सामने आती हैं जैसे उन्होंने एक बड़ा टिपिकल केस लिया और इस केस में where the guilty party is probably the more aggressive party is the girl's family और एक धारणा बनी हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है पीड़ित महिला ही हो इस ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ We're glad to have Avneet ji back and I'll hand it over to her to carry on the discussion. Sorry, there was a technical glitch. So ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ the channels of complaints ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ complaints ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ first of all we have the women helpline ਜਿੱਥੇ ਕਿ pandemic ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ complaints ਆਈਆਂ ਔਰ every day we are getting these complaints and other is the written complaint ਜੋ ਕਿ ਜੋ complainant ਜਾਂ victim ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ so police ਦਾ actually first point of you know procedure ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ because I think the most important thing a police officer can do in marital dispute in complaints relating to marital dispute is counseling is giving them a good listening because suffer dono is parties ऐसे चीज तो कर रहे होंगे because there is no one to listen everyone is just giving them advice and no one is listening to the real root cause of the problem so ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਬੈਠੀਏ and we give them a lot of sittings ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸੀ disputes ਹੈਗੇ ਉਹ solve ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ we preferably make the couple sit alone we don't involve the family members
ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ एवरीवन ਕਮਸ ਵਿਦ ਲਾਈਕ 5 or 6 ਪੀਪਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਲਾਈਕ 6 or 7 ਮੈਂਬਰਸ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 6-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਾਲਿੰਗ ਆਲ ਆਫ them। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ what is the basic reason। and most of the time I have been very successful। 3-4 cases ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 and 4 sittings ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ they were not ready to live with each other, but finally after giving them long sittings, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ spend ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ counseling ਕਰਕੇ, they went away happily together, and even today they give us calls ki ma'am we are very happily settled now and we are very happy। so I think all they need is counseling, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ problems ਦੀ misunderstanding ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ miscommunication ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and I think if you are able to deal with them properly ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਕਾਫੀ issues ਜੋ ਹੈਗੇ solve ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। like we have the women helpline, ਇਸੇ ਕਰਕੇ women helpline start ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ because a woman feels more comfortable talking to a woman, because definitely we have that vibe with each other। so women helpline ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ women complainant ਆਉਂਦੇ ਆ, we have police constables over the women help desk ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and most of the time it gets solved in 70% of the cases। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we also have the ਸਾਂਝ committees, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we have members from the public who belong to different fields। we have lawyers, we have NGOs, we have doctors, all of them working together in ਸਾਂਝ committees। and ਉਹ committees ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ if we feel ਕਿ counseling is required for the couple, so we send that couple to the counselors। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, and it gets solved। so coming back to the problem what we are discussing today, I think it's all about understanding about communication, getting communicated your thoughts, your opinions, your expressions with each other, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I think our counselors will really help a lot in giving some good advice to the couples। and being a police officer ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ we want that we don't get these complaints too often। we would be very happy ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ complaints ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, because that would really help us in doing other things, and it's better if we just ਜਿਹੜੀਆਂ problems ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ problems ਨੂੰ ਅਸੀਂ So I think the technical glitch is back again। So मेरे ख्याल से हम रुख अब काउंसलिंग की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं till Avneet is available to us again for a little more chit chat on the subject। एंड काउंसलिंग की तरफ मुड़ने से पहले मैं बता दूं हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं सेज एडवाइस से। एंड फर्स्ट इज डॉक्टर प्रीति प्रभा, जिनको मैं बुलाऊंगा। Interestingly, she holds a bachelor's degree in homeopathic medicine and an MA in clinical psychology, and she's also got a PG diploma in psychological counseling। So प्रीति बहुत सालों से काम कर रही हैं कुछ ऐसे ही मुद्दों पर जिनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और प्रीति के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं ये कहूँगा कि पंजाब पुलिस की यहाँ पर जितनी हम तारीफ करें कम है कि अपने रोल से आगे बढ़कर अगर वो काउंसलिंग भी ऑफर कर रहे हैं, और जैसा अवनीत जी ने बताया बड़े सक्सेसफुली 3-4-5 केसेस उन्होंने ऐसे हैंडल किए हैं वेयर द कपल्स हैव the husband and wife have reconciled and they are living happily। it's good to hear। so आज ऐसी पॉजिटिविटी और इन अच्छी खबरों की बहुत ज़रूरत है हमें। So I'm going to turn my attention to Dr. Preeti। Dr. Preeti, जैसा कि अवनीत जी ने भी she's pushed the ball in your court कि काउंसलर्स और बेहतर बताएंगे। तो हम अगर एक कपल की बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेजर एरियाज कि एक पति और पत्नी के बीच। Avneet ji, would you like to complete your conversation because I had moved on to Preeti, or should we come back to you after 20 minutes? How do you want to do it? I think please carry on because I had almost made my point that counseling is what is required most in these cases। Right। So we are always there to provide any police help। It's always there। Chalo, that's wonderful। Thank you so much। We'll come back to you towards the end of the webinar if we can and if you're still available to us। So Dr. Preeti, सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है एक शादी का, एक मैरिज का।
और हस्बैंड वाइफ के बीच की कम्युनिकेशन और एक दूसरे से जो उम्मीद लगाई जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है, अक्सर you end up disappointing your partner in more ways than one, and that results in marital discord. बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है. So सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही होगा कि कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस, इन दोनों के बारे में बताइए कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਦ ਮੈਰਿਜ ਟੈਂਡਸ ਟੂ crumble or break down. So पहले आप इसके बारे में बताइए, then we'll take up a few other issues जो अवनीत जी ने भी छेड़े थे, but we'll come to them later. But this is one of the bases. So let's start with this, please. तो सबसे पहले आज हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं उन्हें नमस्कार, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल. थैंक यू इंद्रजीत सर फॉर योर क्वेश्चन. एक्चुअली बात शुरू होती है क्योंकि हमारे समाज में एक धारणा है कि शादी अगर एक बार हो गई तो अब हो गया, अब इसको जैसे चल रही है उसे निभाने दीजिए. हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, उसी तरीके से शादी पे भी आपको हर दिन अपने पार्टनर के साथ काम करना होता है. जहां तक बात आई कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन की, तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों अलग अलग नहीं होती हैं. तो एक शादी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो अभी तक थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस से समझ आया है, उसमें विश्वास, इज्जत और प्यार, ये तीन चीजें अगर होती हैं तो वो आपकी शादी एक सही दिशा में चलती है, एक खुशहाल शादी रहती है. लेकिन ये तीन चीजें आती कहां से हैं? तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का हमारे लिए नॉर्मल मीनिंग होता है एक हस्बैंड वाइफ के लिए कि हस्बैंड जो है उसने बता दिया कि मेरे ऑफिस का ये काम है, मैं जा रहा हूं, और जो वाइफ है उसका कम्युनिकेशन लेवल हमारे सीमित रहता है उसके घर के बारे में या उसके बच्चों के बारे में. आपस में वो एक दूसरे से अपनी शादी के बारे में या अपने ख्यालों के बारे में बात नहीं करते हैं. तो सबसे पहले जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन का सही मतलब समझें, जो कि है कि जब भी आपको कोई बात करनी हो, कोई दिक्कत हो या कुछ फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना हो, तो आप एक साथ बैठें और अपने कानों के साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखें. जब आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसे सुने, ना कि ये सोचे कि जो वो कह रहा है उससे पहले मैं उसे जवाब क्या दे दूं, उसे काट कैसे दूं. और अक्सर हम यही करते हैं, जब बात करा जवाब तैयार हो जाता है. तो उस चीज को ना करें. सुनने के साथ साथ समझें कि बोला क्या गया है और उस हिसाब से उस बातचीत को आगे बढ़ाएं और फिर देखें कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. कम्युनिकेशन, जैसे कि एक्सपेक्टेशन, हमने कहा इंटर रिलेटेड चीजें हैं. तो आप हमेशा, जिस दिन से आपकी शादी होती है, पहले ऑब्वियसली हम जानते नहीं, अगर अरेंज मैरिज है तो एक दूसरे को जानना हमारे लिए अभी वक्त नहीं मिला था, शादी हो चुकी है. लव मैरिज में भी शादी से पहले होता है कि हम एक अलग फेज में होते हैं कि अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो उस वक्त हम शादी की सीरियसनेस को या लाइफ की सीरियसनेस को समझ नहीं पाते. जब शादी हो जाती है, अचानक से हमारे ख्याल, हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं. तो ऐसे में जरूरी है आप अपने पार्टनर से, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों, एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर करें. अभी एक्सपेक्टेशंस कौन सी होंगी, ये सवाल आता है. सिंपल है, आपके क्या सपने थे? अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, एकेडमिक्स में आपने कोई ड्रीम देखा था, वो शेयर करें कि आपकी जिंदगी का ये सपना था जो आप शादी के बाद पूरा करना चाहते हैं. आपको क्या सपोर्ट की जरूरत है अपने पार्टनर से, वो भी उसे बताएं. लड़ाइयां कब होती हैं हमारे आपस के बीच में कि मैंने मन में तो कुछ सोच लिया कि मेरे हस्बैंड या वाइफ को ऐसे करना चाहिए था, लेकिन उसे बताना हम भूल जाते हैं कि आपने आखिर सोचा क्या और आप कैसे चाहते थे उस चीज को. तो अगर ऐसा कोई चीज है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, चाहे कोई हैबिट हो, तो उस हैबिट के बारे में आप उससे शेयर करें कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये चीज ऐसे चाहिए. तो हो सकता है वो जानने के बाद आपका पार्टनर समझ पाएगा, बिकॉज वो एक अलग इंसान है. अक्सर शादी और रिश्तों में हम ये समझते हैं कि हम पति पत्नी को एक दूसरे की बात बिना कुछ कहे समझ जाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो मतलब हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं होता है. पति और पत्नी दो अलग लोग हैं, दो अलग परिवारों से आए हैं, उनका कल्चर अलग था, थॉट प्रोसेस अलग था. तो ऐसे में वो आपकी बात को, आपके
फीलिंग्स को तभी समझ पाएंगे जब आप उन्हें सही शब्दों में उनके सामने रखेंगे। जब बताएंगे ही नहीं तो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में फिर होता क्या है, मिसकम्युनिकेशन, कि आप मेरी बात नहीं समझे, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट लव मी एनी मोर, यू डोंट लाइक मी एनी मोर, इस तरीके के सवाल आना शुरू हो जाते हैं। गड़बड़ हुई थी कि आपने उसे बताया ही नहीं था कि आप चाहते क्या हैं, अपनी एज अ पार्टनर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन चीजों को उनसे शेयर कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव का कारण होता है वो एक दूसरे की फैमिलीज हो जाती हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली, माई फैमिली बात करते हैं। शादी के बाद वो दोनों परिवार एक हैं, तो जितना हो सके परिवारों को अपने रिश्ते से दूर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ना संभल पाए तब आप अपने बड़ों के पास जाइए। हर चीज को लेकर उनके पास जाना, हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर चीज जाके कमरे के बाहर बता दे रहे हैं, उससे प्राइवेसी में उनको प्रॉब्लम लग सकती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ कपल आप एक यूनिट हैं, तो आपको कुछ चीजें आपस में बातचीत करके सुलझानी होंगी। नहीं सुलझ पाती हैं तब आप जाके बड़ों की, दोस्तों की, जिसकी मदद ले सके, दोनों साथ जाएं, ताकि भरोसा बना रहे। ये ना हो कि एक का परिवार एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे का परिवार, ऐसे में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। थर्ड, हमारे एक्सपेक्टेशन में, जैसा कि अवनीत जी ने भी कहा था, जेंडर रोल्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि अगर एक मेल है तो मेल का काम सिर्फ घर में ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, या फिर जो आउटडोर काम है वो सब चीजें मेल करता है हमारे यहाँ। और फीमेल का काम जो है, अगर वो एजुकेटेड है तो ठीक है, जॉब भी करेगी, साथ भी घर संभालना, बच्चे का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, ये सारी चीजें फीमेल पर्सपेक्टिव में आ जाती है। तो अगर आप ऐसे में देखें तो जिम्मेदारियां का जो पलड़ा है वो एक तरफ ज्यादा भारी हो जाता है। तो जरूरी है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो ये समझे कि शादी दो लोगों की हुई है, दोनों का घर है, तो जिम्मेदारियां भी दोनों की बराबर हैं उस चीज के लिए। एक दूसरे को ब्लेम ना करें, तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं बेहतर थी। तो जो भी है बातचीत करें, कौन कौन सी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम है, ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे शेयर कीजिए, और अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके घर की, फैमिली की, उसे शेयर कीजिए। एंड इस चीज में ये सारी प्रॉब्लम्स, मिसकम्युनिकेशंस कहाँ आती है ये तो बता दिया, बट एक सिंपल कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगी, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज की हैं, कि मैरिड लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, कि जब आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी घर से बाहर हैं, सबके पास आजकल व्हाट्सएप है, डिजिटल एरा है हमारा, तो कुछ नहीं तो आप उन्हें एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं, या फिर किस तरीके से उन्हें प्रेज करते हैं, सिर्फ एक लाइन में। मैं गारंटी देती हूँ कि वो मैसेज पढ़ने के बाद आपके पार्टनर के चेहरे पे एक स्माइल जरूर आएगी। दूसरी चीज है 48 आवर रूल्स। लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर रिश्ते में हो जाता है ऐसा, क्योंकि दो अलग लोग हैं, ख्याल अलग हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो आएगा। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जब एक ने लड़ाई की, एक चिल्लाया, मैं भी चिल्लाई, बात बढ़ गई और हाथ से निकल जाती है। तो अगर आपका पार्टनर गुस्से में है किसी कारण से, उस वक्त उसे सुन लीजिए। आपको भी अगर गुस्सा आ रहा है तो खुद को भी वक्त दीजिए। तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वक्त लीजिए, ताकि आप शांत हो जाएं और आप दोनों फिर समझ पाएं कि उस वक्त एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों लड़े थे आप, उस बात का कारण क्या था, कहाँ से जुड़ी हुई थी। एक पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, और फिर जब आप बैठ के बात करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम था वो वहां पे सॉल्व होगा। इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम एग्रेसिव होते हैं तो चीजें बिगड़ती हैं, सुलझती नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक दूसरे पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर भरोसा है तो उस रिश्ते में इज्जत और प्यार दोनों आ सकते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर प्यार है तो शादी चलेगी, लेकिन अगर इज्जत है, आप भरोसा करते हैं तो प्यार अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर प्यार ही नहीं है तो ये दोनों चीजें नहीं आ सकती हैं। तो जैसा भी है, पार्टनर पे भरोसा कीजिए, कहीं से भी कोई बात मिलती है उनसे डिस्कस कीजिए। अपने मन में बायस मत कीजिए कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी ने ये कह दिया कि अरे वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी और तीसरे इंसान को अपने रिश्ते के बीच में मत आने दीजिए। तो
यहाँ पे एक्सपेक्टेशन और कम्युनिकेशन कहने को बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप धीरे धीरे देखते हैं कि आम जिंदगी में यही दो चीजें हैं जो आपके रिश्ते को हर रोज मजबूत बनाती हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा है बीइंग अ पेरेंट। जब हम शादी के रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, माता पिता बन जाते हैं, तो अक्सर हमारे यहाँ पे हमारे जो बातचीत करने का जो वक्त है वो केवल बच्चे तक सीमित रहता है। उसकी पढ़ाई, उसके खर्चे, आज उसने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, उस वक्त हम एज अ कपल खुद को भूल जाते हैं। तो एक चीज हमेशा, छोटी सी बात है, जो अपना बच्चा कल को बड़ा होगा उसकी भी अपनी जिंदगी होगी, वो हो सकता है जॉब के लिए बाहर चला जाए, उसकी शादी होगी। उस वक्त अगर आपने पहले कभी बात नहीं की, तब आपको महसूस होगा कि आप दूसरे से कितना दूर हो चुके हैं। तो बच्चे के साथ साथ हमेशा रुक कर एक बार देखिए कि आपका रिश्ता कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर गलत है तो बैठ के बात करें, उसे देखें कि क्या हो रहा है, और नहीं तो उसे मजबूत बनाने की हर रोज कोशिश करें। जितनी मेहनत आप ऑफिस में करते हैं बॉस के साथ में, अगर उसकी थोड़ी मेहनत भी अगर हम अपने पार्टनर के साथ करें, उसे समझाने में, उसे समझने में, उससे बात करने में, तो ये रिश्ता कभी खराब नहीं हो सकता, ये हमेशा अच्छा रहेगा। वंडरफुल। आई थिंक डॉक्टर प्रीति के बड़े अच्छे होम्योपैथिक नुस्खे हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं कि 2 बूंदे विश्वास की, 2 बूंदे एक दूसरे से बातचीत की, और किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने से पहले अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज। सो कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस के बारे में बहुत सी क्लैरिटी हासिल हुई। अब मेरा दूसरा सवाल जो डॉक्टर प्रीति से होगा, अनफॉर्चुनेटली अभी जी ने भी इस सवाल को उठाया था, एंड पंजाब में खासकर हमने, ये तो नहीं कहूँगा नाम कमाया है, बट बदनामी बहुत इस कॉन्सेप्ट के कारण, इस ट्रेंड के कारण कमाई है, जिसे आजकल दुनिया भर में हनीमून ब्राइड्स और ब्राइड टूरिज्म कहा जाता है। अनसस्पेक्टिंग फैमिलीज इसका शिकार होती है, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हजारों लड़कियां पंजाब में आज ऐसी हैं जिनके पति जो हैं उनके साथ ये धोखा करके कहाँ के कहाँ निकल गए हैं। आज बहुत सी स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशंस के बाद किसी भी एनआरआई लड़के के साथ या एनआरआई के रिश्ते के साथ जो है इस बात को जोड़ा जाता है, रिश्ते को बनाया जाता है। एंड नाउ सो मेनी अदर communities and social organizations have come to the aid of people so that उनके साथ ऐसा धोखा ना हो। तो पंजाब पुलिस के साथ भी हमारे बहुत विचार इस पर शेयर हुए थे, लेकिन डॉक्टर प्रीति से मैं जानना चाहूँगा कि इस बढ़ते हुए ट्रेंड के बारे में उनका क्या कहना है। एंड खासकर मैं आई फील कि जब कोई विक्टिमाइज होता है तो उसकी सिचुएशन इतनी मुश्किल हो जाती है। व्हाट डज शी हैव टू से अबाउट दिस स्पेसिफिकली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में? ओके, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए मैं इस हनीमून ब्राइड टर्म का मतलब क्या है इसको बताना चाहूंगी। ब्राइड टूरिज्म बेसिकली जो लड़कियां इंडिया में रहती हैं, जैसा कि इंद्रजीत सर पंजाब को स्पेसिफिकली बोल रहे थे, तो उस एरिया में जो लड़कियां हैं उनकी शादी ऐसे लड़कों से होती है जो एनआरआई हैं, बेसिकली कनाडा, किसी भी कंट्री, अलग देश में रहते हैं, इंडिया आते हैं, उनसे शादी करते हैं, और कुछ वक्त के बाद या तो उन्हें लेकर जाते हैं या उन्हें यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, कभी ना वापस आने के लिए। तो इस ट्रेंड को आजकल हम ब्राइड टूरिज्म और हनीमून ब्राइड्स के नाम से जान रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं एक रियल लाइफ केस हिस्ट्री है उससे दूंगी, ना कि थोड़ा ज्ञान के उसमें। ये केस हिस्ट्री जो है, जो हमारी क्लाइंट है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस से जो नाम है वो बदला हुआ है, उसका रियल नाम नहीं है और ना ही लोकेशन रियल है। हमारी क्लाइंट जो थी शीतल, एक 19 साल की लड़की है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है, उसके 2 भाई बहन छोटे और हैं। उसके पापा की पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास एक कपड़ों की दुकान है और वो वहीं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। शीतल ने अभी अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म किए थे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर 19-20 साल की लड़की जैसे जैसे होने लगती है, सबको लगता है कि अब शादी करा दो, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, सब शादी के लिए काफी एक्साइटेड होने लग जाते हैं। ऐसा ही शीतल की फैमिली के साथ भी हुआ। उस एरिया में जान पहचान के पंडित जी रहते थे, जो शीतल के फादर के पास आए एक रिश्ता लेकर, और उन्होंने बताया कि लड़का सिंगल है, कनाडा में रहता है और फैमिली को कोई डाउरी नहीं चाहिए, तो आप इनसे शादी करा दीजिए, शीतल की किस्मत खुल जाएगी, बहुत खुश रहेगी, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी।
तो एक लड़की के फादर के लिए ये सुनना कि उसकी शादी में कोई दहेज नहीं लगेगा, कुछ चीज की जरूरत नहीं है और लड़का सिर्फ शादी करने के लिए आ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई होती नहीं है। और यहाँ पे लड़के ने स्पेसिफिकली एक कंडीशन भी रखी थी कि वो शादी अपने माता पिता की कंडीशन हिसाब से करेगा। ऐसा पंडित जी ने कन्वे किया था शीतल के फादर को। शीतल के फादर खुश, उन्होंने घर में बताया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, और क्योंकि उन्हें बताया गया था कि लड़का बस कुछ ही दिनों में आएगा और उसको जाना है, उसकी नौकरी बहुत दिन की छुट्टी नहीं दे सकती है, तो आप जल्दी से शादी करा दीजिए। उन्होंने उनकी बात सुनी, भरोसा करते हुए जल्द से जल्द लड़की की फैमिली आई, शीतल की फैमिली मिली और उन्होंने शादी की डेट निकाल के दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बहुत खुशी से निकले, शीतल और लड़का दोनों खुश थे वहां पे। कुछ 1 महीने के बाद शीतल के हस्बैंड ने उससे बोला कि अब मुझे वापस जाना होगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो जब मैं वहां जाके तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूँ, जब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। नई नई शादी में शीतल अभी बहुत ज्यादा उसकी एज भी नहीं है, वो थोड़ा दुखी तो हुई, लेकिन उसके मन में खुशी भी थी कि हाँ वो कनाडा जाने वाली है, उसका हस्बैंड वहां जाके उससे बुला लेगा। मन ही मन बहुत एक्साइटेड थी वो। शादी हो गई, 1 महीने के बाद लड़का चला जाता है। शीतल थोड़ी दुखी हुई, लेकिन वो उसे हर रोज कॉल करता था, वीडियो कॉल्स होती थी, तो खुश थी वो अपनी जिंदगी में और उस वक्त का वेट कर रही थी कि जब उसे बुलाया जाएगा। 1-2 महीने बातचीत हुई, नॉर्मल कॉल्स हुई, वीडियो कॉल्स हुई। 2-3 महीने के बाद ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ, अब बातचीत कम होने लग गई शीतल और उसके हस्बैंड के बीच में। शीतल जब भी फोन करती उसे ये जवाब मिलता था कि नहीं अभी वो ऑफिस में बिजी है, काम का प्रेशर है, तो तुमसे बाद में बात कर लेगा। उसने कहा ठीक है, समझने की कोशिश कर रही थी कि शादी है नहीं, मुझे समझना चाहिए, समझा उसने इस बात को। फिर कुछ दिनों के बाद हुआ कि अब धीरे धीरे कॉल्स बिल्कुल बंद हो गई। शीतल के पास अब कोई चारा नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, बिकॉज जो नंबर था अब उस पर बात नहीं हो पा रही। इंडिया में उनके बहुत ज्यादा रिलेटिव्स को वो पहचान नहीं पाए थे क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो ऐसे में वो एक उलझन में पड़ गई कि अब करे तो करे क्या, मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, हस्बैंड ने तो बात करना छोड़ दिया, वहां कैसे जाऊं मैं। और क्योंकि शादी की वजह से उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बाद उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम नहीं जानते कि उस लड़के की शादी, जैसा कि कहा कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि गलती लड़के की थी या लड़की की थी। हो सकता है लड़का शायद वहां किसी और को पसंद करता हो या कुछ और रीजंस होंगे, बट उसने प्रेशर में शादी की इंडिया में आकर। रीजन किसी को नहीं पता, बस सच्चाई एक ही थी कि शीतल अब अकेली थी इंडिया में। शादी होने के बाद उसके पेरेंट्स भी परेशान कि शादी के बाद लड़की घर बैठी है। कई बार आसपास के लोग बहुत कुछ बोल जाते थे, अरे कुछ तो गड़बड़ किया होगा। जैसा कि हम जानते हैं बातें बनती हैं, जितने लोग उतनी बातें होती हैं। वही शीतल के साथ भी हो रहा था। अब वो अकेली रूम में उसने रहना शुरू कर दिया, घर के बाहर बहुत कम जाने लग गई धीरे धीरे। ऐसे में अकेलापन उसे बहुत ज्यादा खाए जा रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि वो किसी से कहे तो कहे क्या, अपने मन की दुविधा किससे बताए कि वो किस चीज से गुजर रही है। उसे भी घर परिवार वालों ने ठीक है कि इससे शादी करा दी, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, इसी की गलती होगी, सब उस पर ब्लेम डालने लग गए। यहाँ पे धीरे धीरे उसके मन में कई बार ख्याल आया कि वो अपने आप को खत्म कर दे। जब ये क्लाइंट हमारे पास आई थी तो वो इस स्टेज पे थी कि वो उसके अंदर कोई होप नहीं थी, क्योंकि एक छोटे से शहर की लड़की जिसके सपने बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, पढ़ाई करके शादी करके अपनी फैमिली, एक खुशहाल फैमिली चाहती थी, जो सपना पूरी तरीके से टूट चुका था। तो अब वो सुसाइडल थॉट्स उसके मन में थे। धीरे धीरे हर बात से लेकर वो डर जाती थी, जैसे ही कोई पास आता था उसे लगता था कोई छोड़ के ना चला जाए। तो इस केस में उसके साथ सुसाइडल थॉट्स आए, वो बहुत ज्यादा घबराने लग गई, उसकी एंजाइटी बढ़ने लग गई, लोगों से बात करने में डरने लग गई थी। अब तो यहाँ पे हनीमून ब्राइड्स का जो केस आया कि सब कुछ अच्छा सोच के हुआ था कि लड़की के साथ अच्छा होगा, किस्मत खुल जाएगी, लेकिन सब कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। और ऐसी बहुत सारी शीतल हैं हमारे समाज में जिनके साथ ऐसा हो चुका है। कुछ उनमें से बोल जाती हैं, लकी हैं, उनके केस जो है वो एफआईआर में हो जाते हैं, उनके हस्बैंड्स की कोई इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के पास तो वो चली जाती हैं, और कुछ शायद जिंदगी भर यहीं अकेली रह जाती हैं, ये सोच उम्मीद में कि एक दिन तो शायद वो वापस आएगा,
क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर से हमें सिखाया जाता है कि शादी एक बार होती है, तो किसी और के बारे में सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि कैसे किसी और से शादी कर लूं, क्या पता मेरा हस्बैंड वापस आ जाए। तो इस चीज से गुजरने के बाद एक लड़की के मन पे क्या गुजरती है ये एग्जैक्टली वही जानती है। हम उसकी बातें सुनते हैं, कोशिश करते हैं मदद करने की। तो ऐसे में मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगी कि जब भी कोई शादी का मामला हो, ये जिंदगी भर का मामला होता है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द एल्डर्स, कि जब आप अपने बच्चे की शादी की बात कर रहे हो, लड़की और साथ में लड़का भी, तो हमेशा उसके परिवार के बैकग्राउंड को जानने समझने का वक्त दें। शादी को कभी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का फैसला किसी भी परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरा, पढ़ने दें। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो हमेशा काबिल रहेगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, किसी पे बोझ नहीं होगा, डिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी उसे। और जिस तरीके से शीतल फंस चुकी थी कि वो करे तो करे क्या, शायद वो ये सोच सकती थी कि अगर मैंने एजुकेशन होती तो मैं बाहर जाके जॉब करती, अपने फादर की मदद करती, या फिर कुछ और ढूंढ करके अपना पासपोर्ट या वीजा कुछ करके वो कनाडा खुद से जाने की कोशिश करती। बट उसके पास ये सारे रिसोर्सेज थे नहीं, क्योंकि उसे एजुकेशन के उसे रोक दिया गया था शादी की वजह से। तो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, जरूर कीजिए, लेकिन सोचिए समझिए, थोड़ा वक्त दीजिए और फिर रिश्ते बनाइए, ताकि आपके बच्चे खुश रहें और आपका परिवार खुशहाल और सुखी रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति। अनडाउटेडली जब हम ऐसे केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखते हैं, लोग किताबें भी लिख चुके हैं इस मुद्दे पर, एंड येट इट कंटिन्यूज टू हैपन। आज भी VFS ऑफिसर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लोगों के बाहर जाने के सपने हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरह से वो सपने साकार हों। एंड इनफैक्ट आई विल लाइक टू ऐड वन पॉइंट टू इट कि बहुत से हैं जो बाहर पहुंच जाते हैं और उनको ये रियलाइज होता है दैट आई एम नो मोर देन अ डोमेस्टिक हेल्प एंड आई एम ट्रैप्ड इन दिस मैरिज। और शायद हमारे ऑडियंसेस में और जो लोग बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे, उनकी नज़र में भी अगर ऐसे कुछ केसेस होंगे जो सामने आएंगे, दैट देयर आर girls and there are people who feel trapped in marriages and there is no escape, वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, उनके लिए भी I think counseling, rehabilitation, lot of NGOs and lot of organizations and of course Punjab police is there as a platform. It's a matter of having the courage to speak up, and जैसे डॉक्टर प्रीति ने कहा है, इस मुद्दे में बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो माँ बाप अपने बेटी को, आई थिंक दैट्स द बेस्ट डाउरी दे कैन गिव देयर डॉटर्स। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट बिकॉज एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਸਾਡੇ समाज ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उड़ता पंजाब। और उड़ता पंजाब के साथ साथ सफरर्स, साइलेंट सफरर्स, अगेन बार बार इस मुद्दे को उठाया जाएगा ये कह के कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट वुमेन एज विक्टिम्स। बट यस, बहुत सी औरतें अल्कोहलिक्स के साथ, एडिक्ट्स के साथ शादी में फंस जाती हैं और उसके बाद उनके साथ अब्यूज़, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। बहुत से केसेस में कुछ फर्स्ट हैंड केस स्टडीज़ मेरे पास भी ऐसी हैं जहां पर लड़की 2 साल से एक शादी में है और वो अपने पति को रिहैबिलिटेशन के लिए प्रेरित करना चाहती है, लेकिन द फैमिली थिंक्स इट्स नॉट द थिंग दैट दे वांट और उस लड़की के माँ बाप उसे वापस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो ऐसे बहुत से केसेस हैं, बट आई वुड लाइक अ काउंसलर्स पर्सपेक्टिव ऑन दिस। एंड डॉक्टर प्रीति से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बेस्ड ऑन अब्यूज एंड हरासमेंट ड्यू टू बीइंग मैरिड टू एन एडिक्ट, एन अल्कोहलिक, एक शराबी और एक नशा करने वाले के साथ जब आप एक नर्क सी जिंदगी गुजार रहे हैं, सो उन केसेस में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो where do you go for help, how do you find courage, how does that woman make sense of life? And in fact if अवनीत जी अगर बाद में हमें 2 मिनट मिले तो हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ऐसे केसेस में क्या किया जाता है। बट let's get the counselor's perspective first.
ओके, अल्कोहल धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लाइफ बिजी होती जा रही है, लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या उनका कहना है कि अपने आप को प्रेशर में नहीं फील करना चाहते, इसलिए वो अल्कोहल का यूज कर रहे हैं। बट ये अल्कोहल कब आपकी छोटी सी एक दिन की चीज से आपकी आदत बन जाता है और आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है, ये पता नहीं चल पाता बहुत सारे लोगों को। और तब प्रॉब्लम आती है अल्कोहल एडिक्शन की। अल्कोहल एडिक्शन में नॉर्मली फैमिली सफर करती है, क्योंकि अगर एक बंदा दारू उसमें अल्कोहल ले रहा है, उसे पैसों की जरूरत है, वो अपना काम छोड़ देता है, तो सारा प्रेशर फैमिली के ऊपर होता है कि उसे कैसे संभाले, कैसे उसकी इस आदत से उसे दूर हटाए। इस इंसिडेंट पे रिसेंटली एक क्लाइंट था हमारे पास अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर। जो हमारी लड़की प्रियंका है, उसकी शादी हुई है। शादी से पहले फैमिली को पता नहीं था कि जो उसका हस्बैंड है वो अल्कोहल एडिक्ट है। शादी होने के बाद कुछ दिन, जैसा कि हमेशा कुछ 15-20 दिन, महीना दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऑफिस से लेट आने लगा, और जब लेट आता था तो साथ में नशे में होता था। एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। वो एकदम से इतना ज्यादा लेट नाइट आना शुरू हो गया, दारू के नशे में धुत है एकदम, उसे कुछ नहीं पता कि वक्त क्या हो रखा है, घर में कौन है। घर आता था, उसे नहीं कुछ समझ आया, तो एक दिन जब उसके हस्बैंड ठीक थे, दिन के वक्त में प्रियंका ने अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वो इस बात से परेशान है कि वो अक्सर ऑफिस से लेट आते हैं और साथ में नशे में आते हैं, दारू और सिगरेट के साथ साथ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो हस्बैंड ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं नहीं, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, अब ना मैं दोबारा नहीं करूंगा इस चीज को, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रियंका खुश कि चलो हस्बैंड ने बात तो सुनी मेरी, अब वैसा कुछ नहीं करेंगे। हफ्ता 15 दिन सब ठीक रहता है, वापस से वो चीज शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और अब पहले से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ शुरू हो गया। अब कई बार दिन में भी वो नशे में वापस, पहले रात में आ रहा था, अभी दिन में भी वो कई बार नशे के साथ वापस आने लग गया। अब धीरे धीरे हुआ, क्योंकि अब उसे नशे की आदत पड़ चुकी है, दिन के वक्त में भी वो नशे में था, उसका ऑफिस जहां वो जाता था वहां पे इम्पैक्ट होने लग गया। वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। सो जब काम नहीं करेंगे आप ऑफिस में, ऑब्वियसली आपका बॉस या जो कंपनी है आपको बहुत ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखेगी। तो पहले सैलरी कम हुई क्योंकि लेट आ रहा था, काम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब उस जो हस्बैंड है उसके ऊपर ये प्रेशर है कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, लेकिन अल्कोहल का एडिक्शन अभी भी है, तो अब मैं उसे कैसे पूरा करूं। उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही थी। वो वापस घर आता, अभी नौकरी जाने का उसका और ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था कि अब मेरे पास नौकरी भी नहीं है। तो पहले जो थोड़ा बहुत वो चिल्लाता वगैरह था, अब प्रियंका के पूछने पे मारपीट भी शुरू हो गई। जब भी वो पूछती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो गुस्से में हाथ उठा देता उसके ऊपर। एक बार हाथ उठाया, 2 बार उठाया। प्रियंका एक बहुत डोसाइल लड़की थी, जिसको ये था कि नहीं नहीं, मुझे शादी मेरी निभानी है, मैं कैसे भी करके इसे बना के रखूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती रही कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब अगले दिन नशे से जब उसका हस्बैंड बाहर आता था तो उससे वापस यही कहता था कि वो आई एम वेरी सॉरी, मैंने कल तुम्हें मारा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूँ। तो जब नशे में नहीं था तो उससे माफी मांगता था, उसे मना लेता था, और प्रियंका मान जाती थी। और जैसे ही वो वापस नशे में आता था, वही सिलसिला शुरू, चिल्लाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, जबरदस्ती पैसे ले लेना उससे कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, अल्कोहल के लिए चाहिए। अब प्रियंका को कोई रास्ता समझ नहीं आता है। आज नॉर्मल लड़की, वो सबसे पहले अपने इन लॉज के पास गई, उन्हें बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा है। तो उसे एक सिंपल सा आंसर मिला, तुम्हारा पति है, तुम्हारी शादी है, तुम्हें इसे संभालना होगा, देखो तुम कैसे कर सकती हो। ये उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था। उसे लगा चलो अपने माँ बाप से पूछती हूँ, वो तो बताएंगे, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जब उसने अपने पेरेंट्स को बोला तो उसके पेरेंट्स से उसे एक अनएक्सपेक्टेड जवाब मिला, अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हारा घर है, तुम उसे संभालो, हमें इस बीच में मत डालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रियंका बहुत हताश हो गई थी कि दोनों ही साइड से बड़े लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब ऐसे में कहीं से उसे एक राय मिलती है कि एक काम करो, तुम फैमिली आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो, बच्चा आ जाएगा, पति के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो चीजें अपने आप सुधर जाएगी।
उसे लगा ठीक है चलो जी ये भी कर लेते हैं हम, उसने किया वैसा। लेकिन कहानी ये टीवी नहीं था हमारा, एक रियल लाइफ थी जहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चा आने के बाद प्रियंका के ऊपर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। पति की जॉब ऑलरेडी जा चुकी थी, वो उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज ऑलरेडी कर रहा था, उसे मारपीट कर रहा था, चिल्ला रहा था। अब इसके बाद प्रियंका के पास भी पैसे नहीं थे कि वो बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, खाना, बहुत सारी चीजें होती है, नई जिम्मेदारी, उसे कैसे पूरा करे। घर में फाइनेंस का कोई बहुत ज्यादा सोर्स नहीं था। तो इसके बाद होने क्या लगा कि अब धीरे धीरे प्रियंका की सेहत पे असर पड़ने लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप मेंटली खुश नहीं है, मानसिक तनाव में है, तो उसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। तो क्योंकि अभी उसकी नई नई डिलीवरी हुई थी, बच्चा छोटा था, रात रात भर सो नहीं पाती थी, इस वजह और पति की अल्कोहल की वजह से और ज्यादा परेशान होने लग गई। आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस, उसका छोटा बच्चा चुप ही नहीं होता था, क्योंकि जब वो तेज आवाजें सुनता था उसमें रोने लगता था, घबरा जाता था। इन सारी जिम्मेदारियों के बीच प्रियंका को अभी भी उम्मीद थी कि वो अपने हस्बैंड को ठीक कर सकती है, संभाल लेगी, सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन कई बार फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से उसे अब धीरे धीरे एंजाइटी शुरू हो गई, क्योंकि जिम्मेदारियां थी, करूं कैसे करूं, किससे पूछूं, कहां से मदद लूं, ये सारे सवाल एक साथ। फिर कभी उसे लगता कि अरे बच्चे को कैसे संभालूं, बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा, उसको क्या बताऊंगी, वो ऐसे देखेगा तो क्या समझेगा। इसकी वजह से धीरे धीरे प्रियंका खुद एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब का शिकार होते चले गए। एक तो ऑलरेडी अल्कोहल घर में घुस चुका था, अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम, अब साथ साथ में प्रियंका का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ गया था। तो ऐसे में अब प्रियंका को करना क्या चाहिए? रास्ते काफी सारे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया, मेरे सीनियर ने, कि जब कोई एडिक्ट होता है, कोई अल्कोहल एडिक्ट है चाहे, उससे दूरी मत बनाए, क्योंकि एडिक्शन एक बीमारी है, वो किसी की चॉइस नहीं होती है। तो अगर बीमारी है तो बीमार का इलाज भी है। तो ऐसे में प्रियंका के पास रास्ता ये है कि सबसे पहले वो खुद को थोड़ा मजबूत बनाए, अपनी सेहत पे ध्यान देने के बाद ढूंढे कि और रास्ते क्या हैं जिससे कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके। और इसमें सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आप किसी एडिक्ट को चाहते हैं कि वो उस चीज को छोड़ दे, तो उस एडिक्ट का जिसे आदत है किसी भी, चाहे सिगरेट की या अल्कोहल की, उसका मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं चाहता ठीक होना तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहानी में आपको बताया कि प्रियंका का हस्बैंड बार बार उसे बोलता था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कल से नहीं करूंगा। तो इसमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो ठीक होना चाहता था, बट वो एडिक्शन बहुत स्ट्रांग था जिसकी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। तो इसके पहले भी जब हमने कम्युनिकेशन की बात की, दूसरा जब हमने यहाँ पे हनीमून ब्राइड्स की बात की, और तीसरा जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इन तीनों ही चीजों में मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, शादी में परेशानियां आ रही हैं, इनको सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको लगता है कि अगर घर में बात करके बन रही है तो ठीक है। दूसरी चीज है कि घर के बाहर, जैसा कि अवनीत जी ने बताया था कि पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन अवेलेबल है, सांझ है, उनके एनजीओ में डॉक्टर्स हैं, आप वहां जा सकते हैं। वहां नहीं जाना चाहते तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो आपकी इस परेशानी में मदद करते हैं, चाहे वो एडिक्शन सेंटर्स हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड कोई एनजीओ हो। यहाँ पे भी अगर आपको नहीं लगता है तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप अपने घर के पास वाले किसी भी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है, उनसे बात कीजिए, वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे कि इसके बाद कौन से स्पेशलिस्ट के पास, किस सेंटर में उनकी सबसे ज्यादा मदद हो सकती है, कहाँ पे अगर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है तो वहां कौन आ सकता है, वो आपको इसके लिए गाइड कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम सबसे पहले अगर चाहते हैं तो ठीक हो, उस कॉन्फिडेंस को बनाएं, क्योंकि एक एडिक्ट के साथ सिर्फ एक इंसान नहीं, उसके साथ पूरा परिवार ध्वस्त होने लगता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा परिवार बिखर जाता है धीरे धीरे। तो उससे दूरी बनाने से पहले कोशिश करें कि उसके इलाज में मदद कर सकें, उसके मोटिवेशन को बनाने में मदद कर सकें, कि वो एक नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकता है, अपनी इज्जत जो ऑफिस में थी, घर में थी, उसे वापस पा सकता है। और ये नामुमकिन नहीं है, तो इसके लिए निकलें और मदद की जरूर ढूंढें। अगर मदद मिले उसे अपनाएं, हिचकिचाएं नहीं, किसी और की बातों में ना जाएं
कि ये कभी ठीक नहीं होगा, बीमारी का इलाज हमेशा होता है। Wonderful. Thank you so much. I think Dr. Preeti, बड़ी शिद्दत से, बहुत दिल से आपने जो बातें कही हैं, they are actually very practical suggestions and there is always a road to recovery, there is always hope. And आज शायद families को दोबारा जोड़ने और बनाने की ज़रूरत पहले से कहीं अधिक हो गई है, because we are all battling a pandemic जहाँ financial stresses, other stresses are really testing the boundaries of a family. और इस डिस्कशन को सॉरी राउंड अप करने के लिए हमारे पास शहनाज डॉक्टर हैं सेज एडवाइस से, चीफ काउंसलर, जिनको 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करने का। और इनके साथ मेरी बहुत सी कई बार बातें हुई हैं एंड शी इज़ बीन वर्किंग ऑन सम वेरी सीरियस फ्रंटलाइन इश्यूज, जैसे कि बर्न वार्ड में जहाँ किसी बर्न विक्टिम को लाया जाता है, वहाँ कई बरस इन्होंने काम किया है, सुसाइड हेल्पलाइंस पे काम किया है। सो शी इज गॉट ऑल दैट एक्सपीरियंस, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ इन्होंने महसूस किया है। सो अब इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए मैं शहनाज डॉक्टर से गुजारिश करूंगा कि हमें ब्रीफली आज की जो वेबिनार पे हमने जो बातें की हैं इनको समराइज करें, because I also want to go back for 2 minutes to Avneet ji before we wind up. So, but all yours, Shahnaz, बताइए please. Shahnaz, आप muted हैं. Can you unmute yourself, please? Thank you. Thank you, Inderjeet, and namaskar, everyone. As Dr. Preeti has explained very in a detailed manner और बहुत सरलता से उन्होंने समझाया है, जैसे अवनीत जी ने बताया है, हमारे समाज में शादी को बहुत महत्व दिया जाता है। बचपन से शादी को लेके, शादी के इंस्टीट्यूशन को लेके, द मैरिज इंस्टीट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर लाइफ। हमारे कल्चर देखिए, हमारे लिटरेचर देखिए, यहाँ तक कि हमारे फिल्म्स देखिए, सभी में कहीं ना कहीं शादी का जिक्र होता ही है। और अगर आप फिल्म्स लेते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, लास्ट में लड़का और लड़की की शादी हो जाती है और फिल्म दी एंड होती है। लेकिन रियल लाइफ में शादी के बाद एक्चुअल फिल्म शुरू होती है। और जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि ये जो कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, एक्सपेक्टेशंस के इश्यू होते हैं, एक तो ये हमें हमारे बचपन से या फिल्म्स के जरिए वो एक दिमाग में बड़ा रोमांटिक पिक्चर होता है, प्लस कि लड़के को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है, लड़कियां इस तरह से बिहेव करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो एक जेंडर रोल भी बन जाता है सबके दिमाग में। हालांकि एडजस्टमेंट इश्यूज दोनों को होते हैं। ये जरूरी है कि लड़की, क्योंकि उसका घर बार सब कुछ पीछे छोड़ के आती है, उसे बिल्कुल नए माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, नए तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, तो शायद उसका एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये नहीं कि लड़के को नहीं कोई एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसे भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि अपनी बीवी और फैमिली मेंबर्स के बीच के डायनामिक्स में उसकी खुद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस, ये कम्युनिकेशंस, इसमें प्रॉब्लम आने लगते हैं, हम उसे एड्रेस नहीं करते। नोक जोक, मामूली नोक जोक तो हर शादी में होती है और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। इट स्पाइसेस अप योर लाइफ। बट ये जब बढ़ती जाती है, मन ही मन में, लड़का हो या लड़की हो या और फैमिली मेंबर्स हो, they start building up resentment, they start having lot of complaints, is when you see the cracks forming in the marriage. Obviously, Preeti also has touched upon very important social issues. So has Avneet ji. We are talking about dowries, or we are talking about honeymoon brides, we are talking about addictions. These are again very large social issues that need to be tackled. No two ways about it. But उसका इम्पैक्ट जो हमारे मैरिजेस पे होता है, जो सोशल फैब्रिक पे होता है, उसे समझना बहुत जरूरी है।
किसी को भी गलत ठहराना या किसी को ब्लेम करना शादी में कि इसकी गलती है, इसके वजह से ये सब हुआ है, ये सॉल्यूशन नहीं है उस हल प्रॉब्लम का। हल निकालने के लिए एज प्रीति सेड, पहले तो हम अपने आप में डिस्कस करें, कोशिश करें समस्या का हल निकालने के लिए। लेकिन जब पता चलता है कि हमने सब कुछ कर लिया, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, और फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है, then please look out for help. Whether it is a legal institute, a social institute, NGOs है, doctors है, जो कुछ है, but you have to reach out to seek help. बहुत बार हम हेल्प लेने के लिए बहुत हेजिटेंट होते हैं कि ये हमारी घर की बात है, हमें सिखाया जाता है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, चार दीवारों में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके वजह से द कपल, आई विल से बोथ द पर्सन्स, बोथ द पीपल इन द मैरिज, they keep suffering. Instead, if you reach out for help, there may be a solution for it. As Indrajit mentioned, आजकल का जो पेंडेमिक दौर चल रहा है, और हम देख रहे हैं हमारे केसेस जो आ रहे हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान डिवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। मेन इम्पैक्ट मैरिजेस में हो रहा है। बहुत सारे कपल्स जिनके बीच मन मुटाव था, जिनके बीच प्रॉब्लम्स थे, वो अब डिवोर्स की तरफ देख रहे हैं। क्यों? पेंडेमिक से पहले हम अपना रूटीन था, सभी का था, हम घर से बाहर जाते थे काम करने के लिए, बच्चे स्कूल जाते थे, घर के बुजुर्ग है वो शायद अपने सत्संग में जाते थे, बाजार जाते थे, घर की जो जनानियां हैं वो अपनी सहेलियों से मिलती थी, परिवार से मिलती थी, सबका अपना अपना रूटीन था। तो दिन का थोड़ा समय हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। ये लॉकडाउन चलते हुए, ये पेंडेमिक चलते हुए, हम सभी घर की चार दीवारियों में सब कुछ सिमट के रहे। ऑब्वियसली पेंडेमिक के वजह से हर एक कोई अपने ओन इश्यू से, अपने ओन एंजाइटी से, अपने ओन टेंशन से जुझ रहा है। मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मे बी जॉब के प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज विद प्राइवेसी, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स। पहले सबको लग रहा था कि अच्छी बात है, घर में है तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। फिर जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो जो छोटी छोटी बातें पहले हम नजरअंदाज करते थे या सोचते थे कि ठीक है ये तो उनके वर्क से, हैबिट से, वो धीरे धीरे खलने लगे और फिर दरारें बढ़ने लगी। एक और भी जो बाहर आता है बहुत बार, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। पहले तो बाहर थे तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब घर पे रहे सब तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है कि कुछ चल रहा है। और फिर वो जो धमाका होता है वो भी तो चार दीवारियों में ही होता है, लेकिन उस धमाके से परिवार के और सभी सदस्यों पे बुरा असर पड़ता है। Another point that has come, that the pandemic has brought up, which becomes an issue between couples, between a lot of family members, is use of social media. घर के जो जेंट्स है वो कंप्लेन करते हैं कि वाइफ जब देखो सोशल मीडिया पे होती है, टाइम से खाना नहीं बनाती है, टाइम से घर का काम नहीं होता है। वाइफ्स कहती है कि हमारा काम बढ़ गया है, जो घर का काम है वो जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी, कम नहीं हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन घर से ऑनलाइन करते हैं। हस्बैंड पूरा दिन ऑनलाइन होता है, पता नहीं क्या काम करता है कि सोशल मीडिया पे होता है।
तो ये सारे इश्यूज पेंडेमिक को ले चलते हुए बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे आ गए। और अब तो नॉर्मल क्या है पता नहीं है, तो ये जरूरी बनता है कि इस समय पे instead of allowing the cracks, the incompatibility, जो मन मुटाव है उसे बढ़ने दे यहाँ तक कि हम डिवोर्स तक चले जाए, जिससे पूरे परिवार का नुकसान होता है, पूरे परिवार पे असर होता है। इट मेक्स मोर सेंस कि आप सीक आउट हेल्प, आप पंजाब पुलिस को रीच आउट कीजिए, उनके इनिशिएटिव्स को रीच आउट कीजिए, सेज एडवाइस को रीच आउट कीजिए, डॉक्टर्स, काउंसलर्स। एक मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब आप रीच आउट करते हो तो सोच समझ के रीच आउट कीजिए। जो प्रोफेशनल को आप रीच आउट करते हो उनके बारे में पहले पता कर लीजिए कि उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये इस समस्या को डील करने में कितने कामयाब रहे। So instead of just talking with random people, friends, neighbors, whose advice may be very well-meaning, but may not necessarily be the right advice, it makes more sense to reach out to the professionals. आप अपना ख्याल रखोगे, मेंटल हेल्थ का खुद का ख्याल रखोगे, फिजिकल हेल्थ का खुद का ख्याल रखोगे, अपने पार्टनर का ख्याल रखोगे। The marriage is a foundation of every family. When the foundation is strong, when the family unit is strong, I'm sure together we can even overcome this pandemic time. Thank you so much, my Naz. thought on Thank you this. so much. I think we've come back to where we started from, a full circle. और जो बातें आपने कही हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। वाकई समाज की बुनियाद एक अच्छी फैमिली पे रखी जाती है और उसका बेसिक यूनिट और द ग्लू ऑफ अ फैमिली इज द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप जो एक हस्बैंड और वाइफ एंजॉय करते हैं। वो उसी बुनियाद पे एक अच्छा खुशहाल फलता फूलता परिवार खड़ा करते हैं। मैं काफ़ी देर तो अवनीत जी ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। I'm going to go back to her. अवनीत जी, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। Any last 2 words of wisdom before we thank everyone and close this webinar? मैं मुड़ के ਤੁਹਾਡੇ I was just listening to ma'am and I think she has summed it up very well. Whatever I wanted to say, she has already put it in words. But I would just say, I was reading a few comments. ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ generally ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ from a police perspective, people are like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੱਖ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। So I would like to clarify it ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are gender neutral. But yes, there are laws which have been made for the advantage of women because women have been, the suppressed lot for ages. So definitely there are laws which are made to protect them and we are duty bound to protect them and to follow those laws. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ। And I will also tell, urge the public ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, be very truthful. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ when you reach for professional help, I would say reach very honestly. ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ so that we are also able to make good and wise decisions. And as I said, we all need to work together on this. It is not just one person's responsibility. It is a collective effort. Apna social structure bhi ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ issues ਹੈਗੇ, so we need to social structure also needs to adapt to the changing times. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ change ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So it should be a police and public cooperation and people like you who are working, for many issues. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ we could make a better society. And ending on a positive note, I would say ਕਿ ਆਪਾਂ marital dispute ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। So I will just say ਕਿ there is always a solution. There is always a solution. जो भी problem ਤੁਸੀਂ face ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, the solution is always there. You just need to, understand it better. You need to understand the other person's perspective. So I believe we all have the solution unless and until it's not very violent. The solution is always there and it's a very peaceful situation. So thank you all. Thank you so much for those wonderful words of wisdom and encouragement. Or Waqai, let me quickly summarize in a minute or so because we are well beyond our stipulated time for this webinar. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ patience ਦਿਖਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ADGP ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਵਨੀਤ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡੂਇੰਗ ਸੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੁਡੇ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰੋਲ ਦੈਟ ਵੂਮਨ ਪਲੇ ਇਨ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬੈਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ ਇਜ਼ ਵੂਮਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, whether they have been burned at the stakes as witches or ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, it is important that they get their due and we recognize that ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ, successful, happy, blossoming society ਅਸੀਂ create ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ men and women have to be finding their equal place and the rightful place. So ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੇਕ ਹੋਮਸ ਫਰਮ ਹੇਅਰ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਰੱਖੋ। And when it gets beyond seek help, लेकिन seek professional good help. ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵਧੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਆਊਟ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਲਈ। Thank you, Shanaz Doctor, and thank you, Dr. Preeti, for the valuable information. And thank you to the team behind the scenes from Sage Advice, Masira, for handling everything so effortlessly, so wonderfully. And thank you, everyone, for being part of this webinar. बहुत छेती ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ